બેંક ઓફ બરોડાની સંતરામપુર નવા બજાર વિસ્તાર સ્થિત શાખા દ્વારા સંતરામપુર તાલુકાના રાણીજીની પાદેરી ગામે આવેલ પાદેરી પ્રાથમિક શાળામાં ટીચર સ્વ નીરુબેન હરિદાસ પટેલના અવસાન નિમિત્તે તેમના પતિને કુલ ₹5 લાખના વીમા કવચનું રકમનું ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો। બેંક ઓફ બરોડાની સંતરામપુર નવા બજાર વિસ્તાર સ્થિત શાખા દ્વારા સંતરામપુર તાલુકાની રાણીજીની પાદેરી ગામે આવેલ પાદેરી પ્રાથમિક શાળામાં શાળાના ટીચર સ્વર્ગસ્થ નીરુબેન હરિદાસ પટેલના અવસાન નિમિત્તે તેમના પતિને કુલ ₹5 લાખની વીમા કવચની રકમનો ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો। આ વીમા રકમ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ ઓફ ટીચર્સ સેલેરી એકાઉન્ટ અંતર્ગત મળેલ છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। સાથે સાથે સંતરામપુર નવા બજાર ડીઓબી શાખાના કર્મચારી દ્વારા ઉપસ્થિત શિક્ષક મિત્રોને બેન્કિંગ સેવાઓ સંબંધિત જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે વીમા રકમ સમયસર મળવા બદલ બેંકના અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા સહકાર માટે બેંક ઓફ બરોડાનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। રાણીજી પાદેરી મુકામે સ્વર્ગસ્થ નીરુબેનના આ લાભ નિમિત્તે ઉપસ્થિત બેંક ઓફ બરોડામાંથી ઉપસ્થિત સન્માનીય ઓફિસર્સ ચારે સાહેબો, કાનપુરથી ઉપસ્થિત હેમંતભાઈ જોશી સાહેબ, કરાણાથી પરમ મિત્ર શંકરલાલ, મનરેગા ચેરમેન શાંતિલાલ અને સાથે વડીલ બુઝુર્ગ પટેલ સાહેબ અને આદરણીય સન્માનીય એવો મારા ગુરુજનો। સેલેરી એકાઉન્ટની વાત કરવામાં આવે ત્યારે જોશી સાહેબે વારંવાર અમને ટેકલ કર્યા હતા અને તે વખતે આપણે ના ભૂલવું જોઈએ કે બ્રાન્ચની અંદર નીતિન સર હતા, એમને ખૂબ સપોર્ટ અમને કર્યો હતો અને સાથે એલડીએમ સાહેબ પણ એ વખતે બહુ સરસ હતા અને એમઓએ પ્રક્રિયા ખૂબ ચલાવેલી અને બદલીની પ્રક્રિયામાં એ પણ બદલી થઈને ગયા છે, એમને પણ ન ભૂલાય અને જે અત્યારે પણ ટીમ આવી છે ખૂબ સરસ ટીમ છે અને આપણને ખૂબ સરસ સહકાર મળે છે અને સંતરામપુર તાલુકો દેનાર એક ઋણી એટલા માટે બન્યો છે કે મારા નાનાબેન નીરુબેન જ્યારે સ્વર્ગવાસ થયા છે ત્યારે પ્રથમ એક ઉદાહરણ રૂપે એમને બેંક ઓફ બરોડાએ જ્યારે આ સહાય પૂરી પાડી છે એનો 1400 શિક્ષકો વતી હું બેંક ઓફ બરોડાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, હૃદયથી માનું છું। ફરીવાર મારા શિક્ષકો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું એવો બનાવ ન બને, પણ ક્યારેક આકસ્મિક બનાવ બને અને આવો લાભ આપવાનું થાય ત્યારે વિનંતી સર આપને એક સૂચન પણ કરીએ છીએ કે અમારા શિક્ષકોને ક્યાંક કંઈક કરતી ભૂલ હોય દરગુજર કરી અને લાભ આપવા માટે ખૂબ આપ પ્રયત્ન કરશો। અમને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પણ છે। ये 5 लाख रुपए बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए हमने प्रपोजल बड़ौदा भेज दिया है। बड़ौदा से ये प्रपोजल मुंबई चला गया है और मुंबई में अंडर प्रोसेस है। जैसे ही अप्रूवल आएगा इसकी एक कॉपी हम आप सभी को शेयर कर देंगे और आप लोग का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है ये ऑटोमेटिक बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये सब आपके लिए बेनिफिट बैंक बढ़ाता चला जा रहा है। आपको हम पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन जो भी आप ले रहे हैं मिनिमम से मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर दे रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से विनती है कि आपसे जो भी टीचरगण मिलते हैं उन सभी को बताइए, प्लीज़ उनको बोलिए कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसको स्कीम में कन्वर्ट करा लें, नहीं है खाता तो नया खाता खोल लें। एक मेरी और विनती आप सभी से, जब भी खाता कन्वर्ट हो जाए तो प्लीज़ ब्रांच में जाके कंफर्म कर लीजिए। अगर बाई चांस किसी बैंक एम्प्लॉय की गलती से अकाउंट उस स्कीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़, आप खुद भी, बिकॉज आप लोग शिक्षकगण हैं, आपसे अधिक पढ़ा लिखा कौन होगा, इसलिए आप खुद से अगर जाकर एक बार कंफर्म कर लें कि क्या मेरा उस स्कीम में कन्वर्ट हो गया है। आपने प्रॉपर ये डेटा ऊपर शेयर कर दिया है जिससे कि आपको फ्यूचर में आपका जो भी नॉमिनी हो, भगवान ना करे बट अगर कुछ ऐसा होता है तो जो भी नॉमिनी हो उनको प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करने के 10 बहाने ढूंढती है। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जैसे नीरूबेन के केस में था, उनका प्रॉपर स्कीम में कोर्ट में खुला था, उनका डेटा टाइमली शेयर हुआ था,
इंश्योरेंस कंपनी के पास उनकी पूरी डिटेल पहुंच गई थी। इसलिए जब भी अभी शिक्षक महोदय, देखिए जैसे अमित जी ने बताया, सर ने बताया, बैंक की बहुत सारी योजनाएं हैं और एक ये बैंक का एक प्रयास था। पहले इस तरह के कुछ टाइप्स नहीं थे, तो धीरे धीरे जैसे कि कल बताया अमित जी ने कि अभी इसमें बेनिफिट्स बढ़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप लोगों की तरफ से जो लोग अभी तक इसमें जुड़े नहीं हैं जुड़ेंगे। और ये बेनिफिट देखिए आदमी चला गया, लेकिन ये बिना किसी कॉस्ट के, अपन ने कोई इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं किया, लेकिन व्यक्ति का कमी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक जो सहायता जो सपोर्ट हो सकता था वो किया है। आने वाले समय में जो इसमें बढ़ोतरी होगी, जो नया प्रपोजल भेज रखा है, इस तरह के टाइप के बाद जो नए बेनिफिट्स भी आप लोगों को पास होंगे, तो मेरा यही है, मैंने एक अच्छा प्रयास किया, उसकी वजह से आज मेरे ख्याल में ये पूरे गुजरात में, मतलब हमारे बड़ौदा में काफ़ी हमेशा ग्रुप बना होता था कि ये चलो वहाँ से ये हुआ है, उदाहरण देते थे कि भाई देखो वहाँ कैसे जगह पे हुए। तो ये चीज़ें ये धीरे करके फैली और ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट, आप समझिए कि उसी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट, अमित जी ने भी उसमें काफ़ी, हम लोग सब लोग लगे रहे, पूर्णावाड़ा से जो हमारे जी ने, इनने सब ने बहुत मेहनत की। उसके बाद आज ये स्टेट गवर्नमेंट का उसी का नतीजा है कि ये पूरा लेवल पे टाइप हो गया। तो एक अच्छी पहल है और मैं चाहूँगा आप लोग उसमें, जैसे अमित जी ने एक और बात कही है कि थोड़ा सा आप लोग जरूर चेक करें, जैसे कि इनके केस में सब चीज़ें क्लियर थी, वैसा अगर कुछ है तो आप लोग अपना अपना एक बार जरूर ब्रांच में जाकर देखें कि स्कीम या आपकी तरफ से कुछ कंप्लायंस क्या होता है, एक बार एक एक्टिविटी है तो मालूम है, तो वो चीज़ें हो जाए ताकि अपन भविष्य में इस तरह के अपने पीछे कोई परेशानी फेस करें। मैं चाहूँगा सब लोग इससे जुड़ें। इसके अलावा और भी जो भी बेनिफिट्स हैं आप लोगों के लिए, उन सबका बैंक में काफ़ी चीज़ें हैं। और जैसा भी बताया है कि जो मैरिड वुमेंस के लिए क्या कर सकते हैं उसमें नाम को लेकर, मेरे ख्याल में KYC का इशू होता है, बैंक का अपना कोई हर्डल नहीं है। जैसा एक ही चीज़ हो सकती है कि थोड़ा रिलैक्स नॉर्म्स में, जैसे कि अपन को गाइडलाइंस में थोड़ा सा हम वायलेट करके चलें तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी वैलिडेशन सब कुछ होता होगा जैसे बाकी हमारे आदरणीय बिहारी सर, मेरे ख्याल में उसमें वही चीज़ है, KYC में कुछ तो आपको कॉमन रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पर लीगली जाएंगे, अगर लीगली कहीं भी जाएंगे तो नाम वही चाहिए, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो जितने भी KYC डॉक्यूमेंट है, जैसे सर ने बोला, सेम नाम के होने चाहिए, बस ये सॉल्यूशन है उसका। अब इसमें अगर हाँ, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में हम टाइप नहीं करते हैं ना, कोई भी बैंक टाइप नहीं करता, वो आधार से आप जो आधार नंबर डालोगे वही पैसा, वही अकाउंट में वही नेम आ जाएगा, स्पेलिंग भी सेम, सब कुछ सेम। अब उसमें अगर एक ही KYC डॉक्यूमेंट हो तो दिक्कत नहीं होगा। यदि आपने दो KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर दो अलग अलग नाम है, ये सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम उसमें दो लोग अलग अलग गिनेगा, तो ये मिसमैच आएगा। अब उसमें दिक्कत ये है कि शादी के पहले का नाम होता है सैलरी स्लिप्स पे एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, और शादी के बाद में चेंजेस होते हैं आधार कार्ड पे, बट अकाउंट में चेंज नहीं होते। तो जब भी KYC किया जाएगा या कोई भी इशू आएगा, आपका आधार कार्ड देखा जाएगा सब टाइम का, और सेम टू सेम अकाउंट में होना चाहिए। बट जैसे बाकी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, जैसे बैंक भी, जैसे भी मतलब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है हमारा भी, तो जैसे लेडीज़ में जैसे उनकी शादी हो जाती है तो एक सिंपल प्रोसीजर होता है गैजेट करना। आप गैजेट करते हो, 1500 रुपये होते हैं, गैजेट कर दिया आपने, नाम चेंज हो गया। वो प्रक्रिया जो आपके डिपार्टमेंट में जो ट्रेजरी में होगी, वो आप एक फ्लो चार्ट ले लीजिए उसका कि कैसे नाम चेंज होगा। तो उसमें आपके रिकॉर्ड के ऊपर शादी के बाद का जो नाम है वो आप डलवा दीजिए उसमें। वो एक बार आपने वन टाइम एक्टिविटी कर दी, उसके बाद आपका तो सब जगह पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब पे बैंक अकाउंट पे वही नाम होगा। तो ये एक्चुअल लीगल गाइडलाइंस वो है। तो हमारा सजेशन वही है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको आप अलाइन कर लीजिए उससे। यदि अगर वो अलाइन हो जाता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा